چوز کر سکتے ہیں. یہ ایک خیال جو مجھے مارننگ میں یہاں بیٹھے ہوئے مل رہا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس لیے پریئنگ ٹائم جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ہماری لائف کا بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم وقت ہے کہ جب ہم خداوند کی آواز کو سنیں. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم جب خدا کے حضور آتے ہیں, ہم اس کے حضور بیٹھتے ہیں, تو ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو سن سکیں. ہاللیلویا. ہم ڈیلیورنس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. ڈیلیورنس کا جو مین جو چیز ہے, نجات پانے کے بعد ڈیلیورنس یا رہائی یا چھٹکارا یا آزاد ہونا, یہ ان سائڈ سے بھی ہمیں ضرورت ہے اس کی, اور آؤٹ سائڈ سے بھی ضرورت ہے. ان سائڈ سے بھی ضرورت ہے, اندر سے بھی ضرورت ہے, باطن سے بھی ضرورت ہے, اور باہر سے بھی ہمیں کیا ہے, ضرورت ہے. اندر سے انسان اپنا ہی بہت بڑا مخالف ہے. اندر سے انسان اپنا ہی بہت بڑا مخالف ہے. اور باہر سے ہمیں ضرورت ہے, برائی ہے, ایولز ہیں, ڈیمنز ہیں, اور بہت سارے پریشرز ہیں. ہمیں اس سے رہائی کی ضرورت ہے. میں آج اس کو لکھ رہا تھا, جو انسائٹ ہماری جو حالت ہوتی ہے, مثلا کسی کو معاف کرنا ہے تو اندر سے ہم معاف نہیں کر پا رہے. ہمیں اس سے ڈیلیورنس کی کیا ہے, ضرورت ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم دوسروں کو کیا کر سکیں, معاف کر سکیں. یہ ایک ایگزامپل دیا. بہت ساری باتیں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں, لیکن جو انسائڈ ڈیلیورنس ہے, جو ہمارے اندر سے ڈیلیورنس ہے, وہ خدا کے کلام کو ماننے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں, مانتے ہیں, ہم آنر کرتے ہیں, ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, ہم ایزیلی خدا کے کلام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہمارے اندر سے رہائی کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. ہماری اسپرٹ جو ہے وہ اپ ہونا, رائز ہونا, بڑھنا, لفٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. باہر سے جب ہمیں سامنا ہے ڈیلیورنس کا, بدروہے ہیں, برائی ہے, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کے لیے ہم خدا سے کہتے ہیں ہاللیلویا. اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, خدا. ایکچولی دونوں کے لیے ہم خدا سے کہتے ہیں, لیکن باہر والے ڈیلیورنس کے لیے خدا ہمیں ڈیلیورنس پرووائڈ کرتا ہے. اور جو اندر سے ڈیلیورنس چاہیے, خدا کہتا ہے نجات کے بعد تو بڑھ اور اس قابل ہو جا کہ تو ان ساری چیزوں پر غالب ہو. جیسے مباشرہ میں کلیسیاؤں کو بار بار غالب آنے کے لیے کہا گیا. ان کو باہر سے بھی ضرورت تھی, اندر سے بھی ضرورت تھی. اندر جب گناہ آ جاتا ہے, جب ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مانیں, تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں اور ہم خدا کی آواز کو سن سکیں. خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے, اور جب ہم بدلتے ہیں تو ڈیلیورنس, رہائی ہماری زندگی کے اندر ٹھہرنا شروع ہو جاتی ہے. ڈیلیورنس کا مطلب ہے آزادی ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم فتح پانا شروع ہو جاتے ہیں, ہم غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی میں روح القدس کا کام بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے جسمانی کام کم ہوتے جاتے ہیں, اور روح کا کام ہماری زندگی کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ روح کے پھل ہماری زندگی سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طور سے ہمیں اس کی ضرورت ہے, ڈیلیورنس کی ہمیں ہر روز ضرورت ہے. خدا کی ہمیں ہر روز ضرورت ہے, رہائی کی ہمیں ہر روز ضرورت ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں کا, بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. کل میرے ایک دوست
मैसेज दे रहे थे, उनको छोटा सा इंट्रो था, तो मैंने सुना, तो वो क्या, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। कह रही थी आपका दुश्मन मरता नहीं, आपका दुश्मन जो स्पिरिचुअल जो आपका क्या कहना चाहिए जो एनिमी है वो मरता नहीं है, क्योंकि बदरू मरती नहीं है, ना रूह मरती है ना बदरू मरती है। और जैसे आप वीक होते हैं, बाहर वाला जो है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, वो आप पर क्या होता करता है, हमला करता है। आप उसको शिकस्त दे सकते हैं, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, लेकिन एक दिन आने वाला है जब उसको क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन जल्द आने वाला है, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद जल्द आने वाला है। इसलिए डिलीवरेंस की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने डर के जिंदगी बसर करनी है, डरते रहना, इब्लीस से कांपते रहना, नहीं। हमारे पास फतह है, हमारी बुनियाद यीशु मसीह की फतह है। कलीसिया की बुनियाद किस पे रखी गई है, जी उठे मसीह पर। कौन से मसीह पर, जी उठे मसीह पर कलीसिया की बुनियाद है। यीशु मसीह जी उठा, और ये जी उठने की गवाही ही रसूलों को दुनिया में लेकर गई, और उन्होंने बताना शुरू किया, ये गवाही देना शुरू की कि यीशु मसीह जिंदा है और तुम्हारे गुनाह क्या हो चुके हैं, माफ हो चुके हैं, और उसने तुम्हें मुकम्मल खलासी रहाई बख्शी है। और इसी पैगाम पर हमारी बुनियाद है, और इसी पर हम खड़े हैं। हम किसकी फतह पर खड़े हैं, हम मसीह की फतह पर खड़े हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है, तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा दिया गया है। तुम्हें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कौन सी रूह बख्शी गई है, कौन सी रूह बख्शी गई है, गलबा पाने की रूह, गलबा पाने की रूह, गलबा पाने की रूह अजीजों हमें बख्शी गई है। हमें डरने की रूह नहीं, कांपने की रूह नहीं, हमें गलबा पाने की रूह बख्शी गई है। और हम इस काबिल है मसीह को कबूल करने के बाद कि हम अपने इंसान पर कब्जा कर सके, और हम अपने बहरूनी दुश्मन पर भी क्या कर सके, गालिब आ सके। ये यीशु मसीह के वसीला से हमें पहले से फराहम कर दिया गया, हमें पहले से ये मिल चुका है, हमें पहले से ये दे दिया गया है, और हमारी बुनियाद इस पर रखी गई है। अब हमने अपने उस इख्तियार को लेना है, अपने उन प्रिविलेजेस को लेना है जो खुदा ने हमें दिए हैं, और हमने ईमान के साथ उसको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। ईमान के साथ हमने उसमें बढ़ना है, ईमान के साथ हमने चलना है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में मौका देना है कि वो हमें धोए, पाक और साफ करता चला जाए, हम निखरते और संवरते जाएं, हम कमाल की तरफ बढ़ते चले जाएं, और हम मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक बढ़ें और तरक्की करें, और हमारी रूहानी जो सूरत और शबीह है ये वो यीशु मसीह की तरह होती चली जाए, हमारे किरदार, हमारे रवैये उसकी तरह होते चले जाएं। सो हमें इनसाइड से भी डिलीवरेंस चाहिए, और हमें आउटसाइड से भी डिलीवरेंस चाहिए। तो ये डिलीवरेंस का आगाज मैं जब सोच रहा था, तो रूहुल कुद्दुस मेरे दिल में कुछ बातें डाल रहा था। उसमें से एक बात ये थी कि डिलीवरेंस का आगाज आपके अंदर से होता है, आपके इनसाइड से होता है। कैसे होता है? इनसाइड से, अंदर से, अंदर के इंसान से, रूह से आपका क्या होता है, आपका डिलीवरेंस का आगाज होता है। आपके अंदर क्या है, आपके सोल में, आपकी जान में, आपके माइंड के इमोशंस में डिलीवरेंस का आगाज होता है जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आकर ठहरता है। हम उसे लेते हैं, हम उसे समझते हैं, हम उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। हम खुदा के कलाम पर जब ट्रस्ट करते हैं, जब भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर से डिलीवरेंस का क्या होता है, आगाज होता है। कहता है खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे छुड़ा। दाऊद क्या कहता है, अपने कलाम के मुताबिक। जो हमने लास्ट संडे जो हमने हवाला
ज़बूर 119 का पढ़ा था, अपने कलाम के मुताबिक मुझे क्या कर छुड़ा। यानी कलाम जब आया, हमने कलाम को लिया, हमने उसको माना, हमने उस पर बिलीव किया, हमने उस कलाम पर ट्रस्ट किया, हमने उस कलाम को अपने अंदर ले लिया और हमने उस पर भरोसा किया और हम उस कलाम पर चलना शुरू हुए, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर डिलीवरेंस का क्या होता है, आगाज होता है और हमें छोटी छोटी फतवात मिलती हैं और एक दिन हम बड़ी फतह भी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। हम बदलते चलते हैं। फतह क्या है? हम बदलते जाएं। फतह क्या है? हम मसीह की सूरत और शबीह में ढलते चले जाएं। फतह क्या है? हमारे अंदर नजात का काम जो है वो डीप होता चला जाए। फतह क्या है? हमारी जिंदगियां फलदार होती जाए। फतह क्या है? हम छुपे और मसीह हम में से नजर आए। फतह क्या है? मैं घटता चला जाऊं और मसीह मेरे अंदर बढ़ता चला जाए। फतह क्या है? दूसरों की मैं इज्जत करूं। फतह क्या है? दूसरों की मैं बेहतरी चाहूं। फतह क्या है? ग्रंथियों 13 वाली मोहब्बत मेरे अंदर से छलकना शुरू हो जाए। ये डिलीवरेंस हमारे अंदर से शुरू होती है और इसका कॉज हम ही हैं। हम ही जो है वो शिकस्त खुर्दा होते हैं और हम ही अपने अंदर जो है वो फतह का आगाज कर सकते हैं खुदा के कलाम पर भरोसा करने से। हालेलुया। आप कुछ समझ रहे हैं? आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह आपको रहाई बख्शता है। आप तालियां बजा सकते हैं इस बात। आज जो खास बात डिलीवरेंस के हवाले से, थोड़ा सा पानी जरा दे, मैं जरा कोट भी ला रहा, मेरे गर्मी लगनी शुरू हो गई। मैं क्या नहीं चल जाएगा, लेकिन कोट का जमाना हाले दूर। हमें बुराई के अगेंस्ट डिलीवरेंस चाहिए। इवल, बुराई, और बुराई बाहर भी है और बुराई अंदर भी है। एक हवाला हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे, रोमियो उसका 7 बाब उसकी 18 से 25 आए। कोई बुलंद आवाज के साथ इसको पढ़ सकता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं, अलबत्ता इरादा तो मुझ में है, मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। चनाचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। आमीन। इसके 7 का 18 से 25। गर्ज में ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। आमीन। आमीन। यहाँ पर इस आयत में हमें नजर आता है, एक बड़ी स्ट्रगल नजर आती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जिस्म और रूह है। इसकी वजह क्या है? जिस्म और रूह। वो कहता है जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता
वो मुझसे हो जाती है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हम दो फितरतों से जूझ रहे हैं, हम दो फितरतों के साथ लड़ रहे हैं। एक पुरानी फितरत जो गुनाह आलूदा है और एक नई फितरत नए मखलूक होने के तौर पर जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दी है, न्यू नेचर। न्यू नेचर पुरानी नेचर पर गलबा पाना चाहती है और पुरानी नेचर नई नेचर पर क्या करना चाहती है, गलबा पाना चाहती है। और ये हमारे अंदर ये जंग मुसलसल क्या रहती है, जारी है। हमारे अंदर मुसलसल ये जंग क्या रहती है, जारी है। और वो क्यों कहता है ये बातें, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि मैं इस बदन में रहता हूं जो पहले से गुनाह करने का आदी। मसीह को कबूल करने के बाद और उसके बाद भी बहुत दफा हमारी जिंदगी जो है वो गुनाहों में बहती है, लेकिन हमारी अकल, हमारे अंदर जो मसीह की अकल है वो बार बार वो पुराना काम करना नहीं चाहती, लेकिन जिस्म को उसका तजर्बा है, इसलिए बाज़ औक़ात ईमानदार भी जो है उसका शिकार हो जाते हैं। ये जंग हमारे अंदर क्या है अजीजों, इसको रूहानी जंग भी कह सकते हैं। ये हमारे अंदर क्या है, जारी है और हम इससे हर रोज लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों घर में एक छोटा सा मसला, एक छोटा सा केस कोई स्टडी कर ले, उसमें आपको दोनों चीजें ये नजर आएंगी। छोटा सा कोई भी मसला आप स्टडी कर लें, आपको उसमें ये दोनों चीजें नजर आएंगी। या आपके दिल में आपका जो रूह है या आपके अंदर जो आगाही आपको मिल रही है रूहुल कुद्दस के वसीला से, वो कह रही है इस पर गालिब आ, और जिस्म उसकी तरफ क्या करता है, खिंचता चला जाता है। कई दफा हम ईमानदार होते हुए भी दूसरों को मोहब्बत उस तौर से नहीं कर पाते जिस तौर से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। हमारी मोहब्बत में भी गर्ज का एलिमेंट जो होता है वो मौजूद होता है। हम देखिए, हम ईमानदार हैं, हम आजाद किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया के लोगों की तरह ही बहुत सी चीजें हमारे अंदर हैं, बहुत से काम हमारे अंदर हैं, बहुत सी बातें हमारे अंदर हैं। दुनिया की तरह की, आम लोगों की तरह की चीजें हमारे अंदर हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और फिर बाज़ औक़ात हम इसे शिकस्त खाकर तो हम कहते हैं चल कोई गल नहीं, जिंदगी चलती भी है, चलाई जाओ, जिंज भी चलता पिया, वक्त कड्डो अपना। लेकिन अजीजों, चर्च को प्योरीफाई हो रहा है, चर्च को पाक हो रहा है, चर्च को ओल्ड नेचर पर फतह पानी है, चर्च को पुरानी इंसानियत पर, पुरानी फितरत पर, कलीसिया को, खुदा के लोगों को फतह पानी है। और ये डिलीवरेंस, ये आजादी हमें खुदा के कलाम से मिलती है जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में क्या देते हैं, जगह देते हैं। जो बाहर का ईवल है उस पर फतह पाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अंदर है उस पर फतह पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। और अंदर के लिए इसलिए भी मुश्किल है कि अंदर को कोई देखता नहीं, अंदर को कोई देखता है, अंदर को कोई देखता नहीं। किसी के कोई नहीं मिलता, चल ऐसे भी नहीं मिलते हैं, चलो चल रहा है, ऐसे ही चलता जाना चाहिए। लेकिन ये हमें खुदा की बादशाही से क्या ले जाता है, दूर ले जाता है। इंसान फिर जब वो कोशिश नहीं करता, जब वो लड़ता नहीं है, जब वो खड़ा नहीं होता, जब खुदा को अपने साथ नहीं लेता, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में नहीं चलता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्विट कर देता, वो छोड़ देता, कहता मैं इस जिंदगी पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन कलाम कहता है कि तू क्या कर, गालिब आ। कलाम क्या कहता है, तू गालिब आ। यहाँ पर 24वीं आयत में ये देखें, वो उसकी बड़ा उसका चलाना है, उसका कर्ब है, उसकी अजियत है, बहुत कर्मनाक है। वो कहता है हाय मैं कैसा, हाय कब निकलता है जी, जब बड़ा दर्द हो, जब बड़ा दुख हो, जब बड़ी शिकस्त का सामना हो, जब लड़ लड़ के रह गए हो,
तो फिर अंदर से क्या निकलता है? हाय हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? ये बदन फानी, जिसको ओल्ड नेचर सिन का एक्सपीरियंस है, जिसको पुरानी फितरत, गुनाह आलूदा फितरत का एक्सपीरियंस है, वो कहता है हाय, इससे मुझे कौन छुड़ाएगा? लेकिन आगे वो कहता है, मैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का क्या करता हूं? शुक्र करता हूं। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम नहीं। यानी कि ये बदन हमें खींच कर ले जाता है, इसमें बुराई की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम इस बदन की ना सुने, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की ना सुने, हम खुदा के कलाम की सुने, तो हम इससे क्या पाते हैं? रहाई पाते हैं। क्या पाते हैं? क्या पाते हैं? क्या पाते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने अंदर जो जंग है उसमें रहाई पाए, अंदर जो जंग जारी है उसमें रहाई पाए। हमें जरूरत है, चर्च को जरूरत है, हर एक जिंदगी को जरूरत है, हर एक रूहानी शख्स को इसकी जरूरत है। ये हमें घेर लेती है, ये हमें वापस लेकर जाना चाहती है, ये हमें हमेशा की मौत में लेकर जाना चाहती है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे हम फतह पाएंगे? कैसे हम फतह पा सकते हैं? खुदा के कलाम को ऑनर करने से, उसके हुजूर आने से, उसके हुजूर बैठने से, रूहानी तौर से हमेशा बेदार रहने से हम इस पर क्या आ सकते हैं? गालिब आ सकते हैं। रोमियो 6 उसकी 14 आयत में लिखा, इसलिए गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक। अजीजों, फजल की शरीयत, मसीह की शरीयत, फजल हमें आजाद करता है। और ये फजल किसकी तरफ से है? फजल किसकी तरफ से है? यीशु मसीह की तरफ से है। और ये फजल उस वक्त ही होता है जब हम उसके हाथ में होते हैं, जब हम उसके पास होते हैं, जब हम उसे अपनी जिंदगी का चार्ज देते हैं, जब हम अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंपते हैं, तो फिर फजल हमें यह कुव्वत फ्राहम करता है कि हम जिस्म के कामों पर क्या आ सके? गालिब आ सके। यीशु मसीह हमें वो कुव्वत अता करता है जो हमें जिस्म के कामों पर गालिब आने के लिए चाहिए। वो कुव्वत हमें यीशु मसीह अता करता है। और इसकी 5 और 6 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ उवस्त हो गए, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ उवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ उवस्त होंगे। चनाचा हम जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। मसीह हमें गुनाह की गुलामी से, शरीयत की गुलामी से मसीह हमें क्या करता है? आजाद करता है। जब हम समझे कि हमारी पुरानी इंसानियत यीशु मसीह के साथ क्या की गई है? मसलूब की गई है, तो फिर पुराने काम जो है वो हमेशा की मौत में लेकर जाएंगे। लेकिन खुदा के रूह का काम
खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी, खुदा की ताबेदार होना, ताबेदार जिंदगी बसर करना हमें हमेशा रहाई बख्शेगा। डिलीवरेंस का आगाज हमारे अंदर से होगा। डिलीवरेंस का आगाज, रहाई का आगाज अजीजों कहां से होगा? हमारे अंदर से। इसलिए हमें अंदर से भी डिलीवरेंस चाहिए और बाहर से भी डिलीवरेंस चाहिए। बाहर की डिलीवरेंस का जिम्मा खुदा का। कोई डीमन आ गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने फलाना कर दिया, ये खुदा रहाई बख्शेगा। हालेलुया। लेकिन अंदर से रहाई, जिन चीजों पर आपने गलबा पाना है उसका आगाज आपने खुद करना है, ईमान रख के। हालेलुया। हम अंदर भी गालिब आए और बाहर भी क्या आए? लेकिन जब अंदर गालिब आएंगे तो बाहर वाला जो है वो वैसे बेकार हो जाएगा। हालेलुया। जब अंदर, अपने अंदर पर हम अपने माइंड, विल, इमोशन पर, अपनी जान पर जब हम काम करेंगे तो अंदर से हम क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, हम पाक हो जाएंगे, हम गालिब आ जाएंगे, हमें रहाई मिल जाएगी, हमें फतह मिल जाएगी। बाहर वाला दुश्मन खुदा खुद ही उसे क्या कर देगा? गर्क कर देगा, हलाक कर देगा। ओ आज हमारे लिए खुद ही खड़ा होगा, वो जंग लड़ेगा। बाहर वाला दुश्मन वो मारता चला जाएगा, अंदर वाले दुश्मन पर चर्च आप खुद गालिब आए, खुदा के कलाम को मानते हुए गालिब आए। बाहर वाला दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप अंदर से जीते होंगे, बाहर से भी हम जीतेंगे। खुदा फतह का मंबा है, वो हमें फतह अता करेगा। हालेलुया। तो बुराई, वो कहता है इस बदन में ये जारी है, हाय कौन मुझे इससे छुड़ाए? खुदा हमें इससे छुड़ा सकता। हम खुदा के कलाम को माने, हम खुदा के कलाम को ऑनर करें, हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अंदर से डिलीवरेंस की नदियां क्या होंगी? जारी होंगी। जो मुझ पर ईमान लाए, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 7 बाब, जो मुझ पर ईमान लाए उसके अंदर कैसे? किताबे मुकद्दस के मुताबिक उसके अंदर पानी की नदियां, जिंदगी की नदियां, फतह की नदियां, रहाई की नदियां, तरक्की की नदियां, सरफराजी की नदियां उसके अंदर क्या होंगी? जारी होंगी। ये यीशु मसीह ने कर दिया है। हमने ईमान लाना है, हमने कलमा पढ़ना है, हमने उसको अपनी जिंदगी में मौका देना है, हमने उसे अपनी जिंदगी का मालिक बनाना है, हमने यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, हमने उसके पीछे आना है। डिलीवरेंस आपके लिए है, रहाई आपके लिए है। उसने अपनी जान सलीब पर हमारे लिए इसलिए दी है कि हम अंदर भी फतह पाए और हम बाहर भी फतह पाए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट फिर कुछ देखेंगे।